interpreting and communicating financial information to the users. It shows profit earned and loss incurred during the accounting period, value of assets, nature of assets, liabilities, and owner's equity capital. So, accounting is a language of business, accounting is a medium of communication. So here some points, by the help of some point, we are showing the role of accounting in business. Number 1, maintenance of systematic record. Second point, assistance to management. Third point, facilitates comparative study. Fourth point, evidence in court. And some other functions, facilitate raising loans. If we see the role of accounting in business, accounting plays a very vital role for business. First is it maintains systematic records of the business. This is positively done with the help of accounting. Second point, assistance to management. If we are putting our records systematically, this will help to the management a lot, because management needs vital information to manage the organization and for the decision making, for the upliftment of the business. Next is facilitates comparative study. If we are putting the proper records of the last year, running year, I mean to say of the previous year and the current year, we can see the position. If our business is upgrading, it's good. If our business is going downward, we can comparing it and can find out the reasons of it. Evidence in court, we can use the accounting records as evidence in the court, because we are having everything in written form. Facilitates raising loan. If we want to take the loan, because requirement of funding is very important, and if we want to take the loan from bank, we can take it very easily. And it is possible when we are having every records of business systematically, mean to say we are maintaining trading and profit and loss account and the balance sheet also. So these are the role of accounting in business. Some more points are here to show the role of accounting in business. 6 point, facilitates tax liabilities. Seventh, facilitates sale of business. If we are putting the proper accounting records of our business, we can settle the tax liabilities also. And if we want to sell our business, we can sell it, because we are having everything, we are keeping the records of our business properly. These are the role of accounting in business. आगे बढ़ते हैं बच्चों.
Branches of accounting. Branches of accounting. There are 3 branches of accounting. Financial accounting, cost accounting, management accounting, अब 2 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की और हैं बेटा, टैक्स अकाउंटिंग, जीएसटी अकाउंटिंग, आपके 11th स्टैंडर्ड में जो अकाउंट्स की बुक है डबल एंट्री बुक कीपिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आप 11th क्लास में इस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग को पढ़ते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को। कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, जीएसटी अकाउंटिंग ये हायर लेवल में है, बीकॉम ऑनर्स वाली क्लासेस में है। अब अगर मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करूं बेटा बच्चों, तो फाइनेंशियल अकाउंट इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज कंसर्निंग विद द फाइनेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इन दिस ब्रांच financial accounting is that branch of accounting which records financial transactions and events, summarizes and interpreted them before communicating the result to the users. It determines profit earned or loss incurred during an accounting period, usually a year. कोई भी बिजनेसमैन अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को 2 तरीके से क्लोज करता है, या तो कैलेंडर ईयर के हिसाब से, कैलेंडर स्टार्ट फ्रॉम 1 जनवरी एंड एंड ऑन 31 दिसंबर, या फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से फाइनेंशियल स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड कम टू एंड 31 मार्च। तो कोई भी बिजनेसमैन अगर कैलेंडर ईयर के हिसाब से अपने अकाउंट्स को मेंटेन करता है तो वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को 31 दिसंबर को क्लोज करेगा, और फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अगर अपने अकाउंट्स क्लोज करता है तो वो 31 मार्च को अपने अकाउंट्स को क्लोज करेगा। अपने अकाउंट्स को क्लोज करने का मतलब है उसे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट मेंटेन करनी होगी। यानी कि द एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड एंडेड, which shows the profit earned or loss incurred, and the balance sheet as on the last day of accounting period, which shows the financial position. यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो एंड प्रोडक्ट है, जो अल्टीमेटली उसका लास्ट कंक्लूजन है, वो है ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट अर्न कितना हुआ या कितना लॉस सफर्ड हुआ ये कैलकुलेट करते हैं। एट द एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करी जाती है जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का पोजिशनल स्टेटमेंट होता है। फिर हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग है। द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द एसरटेनिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ऑपरेशन, प्रोसेस और एक्टिविटी। इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच डील्स विद रिकॉर्डिंग कॉस्ट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एसरटेनिंग, रिड्यूसिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना सीखते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को मिनिमाइज़ कैसे करा जाता है, एंड किसी भी चीज़ की कॉस्ट को मिनिमाइज़ कैसा करा जाता है, और कंट्रोलिंग कॉस्ट क्या है, इसको हम दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग की हेल्प से सीखते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इन विच वी लर्न हाउ टू मैनेज द organization. Management accounting is the most recently development branch of accounting. It is concerned with the generating accounting information relating to fund, cost, profits, as it enables the management in decision making. So
financial accounting, cost accounting and management accounting. These are 3 branches of accounting जो आपके 11th क्लास के सिलेबस में दी हैं, लेकिन आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आपके कोर्स में है, डबल एंट्री बुक कीपिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसे पढ़ना है। कॉस्ट अकाउंटिंग इन शॉर्ट बता रहा हूँ बच्चों, कॉस्ट अकाउंटिंग में सिर्फ आप कॉस्ट को मिनिमाइज करना सीखते हैं, कॉस्ट की कंट्रोलिंग करना सीखते हैं, कैसे इनपुट्स को कम रेट पर ख़रीदें, इनपुट की कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज करें, ये सब चीज़ें कॉस्ट अकाउंटिंग की ब्रांच में आपको बताया जाता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग अकाउंटिंग की मोस्ट डेवलप्ड ब्रांच है। इसमें आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना सीखते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मैनेज करा जाए, कैसे उसकी फ़ंड फ्लो की पोजीशन को, कैसे उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को, कैसे उसकी कैश फ्लो की पोजीशन को मैनेज करा जाए, ये हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सीखते हैं। टैक्स अकाउंटिंग में टैक्स से रिगार्डिंग प्रोसेस है एंड जीएसटी अकाउंटिंग में जीएसटी के रिगार्डिंग प्रोसेस है। ये आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको बाद में डिस्कस करा जाएगा। आपको मेन जो अभी पढ़ना है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना है। कॉस्ट अकाउंटिंग भी अभी आपके सिलेबस में नहीं है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी आपके सिलेबस में नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। बच्चों मैं एक बार ये चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा अकाउंटिंग, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी थोड़ा सा एक रिव्यू दिया जाए, ताकि आप ये फर्स्ट चैप्टर जो आपका बेस है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, ये आपके दिमाग में एग्जैक्टली क्लियर हो पाए। तो फर्स्ट थिंग इज़ accounting, after that bookkeeping, and then accountancy. कोई भी बिजनेस या कोई भी इवेंट्स जब होता है, जैसे मैं कहूँ, कोई भी अगर आप बिजनेस करते हैं तो कोई